स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे. फाइन. फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने आपको बताई, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर. फाइन. तो अगेन आई एम गोइंग टू राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर यू. व्हाट फॉर्मूला वी हैव? बच्चे, कन्वर्जन का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n2 इक्वल टू n1. फाइन. विद इन ब्रैकेट it is m1 divided by m2 raised to power a, right? Then length of in first system divided by length in second system raised to power b, and third one is time t1 divided by t2 raised to power c. आई होप आप लोगों को लास्ट टाइम जो न्यूमेरिकल मैंने करवाया था और एक न्यूमेरिकल मैंने एज एन एक्सरसाइज आप लोगों को दिया था, आप लोगों ने वो कंप्लीट करा होगा. फाइन. Okay, fine, good. So today we will continue with the same topic, how we can convert one system of unit into another. This topic is very important. Fine. आप लोगों को complete idea होना चाहिए कि हम एक system of unit को दूसरे system of unit में कैसे convert करेंगे. Now we are increasing the level of the question. Fine. Last time मैंने बोला था convert 1 joule into erg और 1 newton into dyne. And you people have this conversion. 1 joule is equal to, I think last time we calculated it. Any of you? Yes, good. It is 10 raised to power 7 erg. और बच्चे, जब मैंने बात करी थी 1 न्यूटन, this is 10 raised to power 5 dyne. Okay. So this conversion we people have done with the help of this formula and with the help of dimensional analysis. Okay. आज के इस टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगा, यहां बच्चे मैंने कन्वर्ट करा था एसआई को सीजीएस में, और अब अगर मैं आपको बोलूं कि सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करिए, तो हाउ वी पीपल कैन कन्वर्ट द गिवन सीजीएस वैल्यू इनटू एसआई. लिसन केयरफुली. आई एम गोइंग टू राइट हियर क्वेश्चन नंबर 3 इन द सेम टाइप. See, this is your question. Convert the value of capital G. You know what is capital G? It is universal gravitational constant. तो बच्चे, मैंने आपको यहाँ वैल्यू दी, convert capital G 6.67 into 10 raised to power minus 8. It is dyne. Fine. Dyne is the SI unit for the measurement of the force. अब आप मेरे से ये पूछेंगे कि वैल्यू मैंने G के यूनिट कहाँ से लिए. तो यूनिट लेने के लिए आपको पता है कैपिटल F, कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. राइट. बच्चे, यहां से कैपिटल G फाइंड आउट करिए. इट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास m1 m2. तो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इन द CGS सिस्टम. सी, फोर्स इज मेजर्ड इन डाइन, distance is measured in centimeter, and here centimeter square I am talking about, divided by kilogram. It means in CGS it is per gram square. Fine. करना क्या है आपको? Convert the value of capital G, which is 6.67 into 10 raised to power minus 11 dyne centimeter square per gram, into SI value or into SI system of units, into SI system of units. अब आपका जो कन्वर्जन है, that conversion is little bit we are doing from CGS to SI. बच्चे, इससे पहले जो भी प्रॉब्लम आप लोगों ने करी, उन प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने कन्वर्जन करा था SI से CGS, लेकिन अब मैं कन्वर्जन करूंगा CGS से SI. Again, it is very simple method. Fine. The step number 1. You know there are 3 steps for solving such type of numericals. बच्चे, जो फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे होगा, identify the given quantity. आप इस given quantity को identify करेंगे. What that given quantity is? Universal gravitational constant. Fine. जैसे ही आपने quantity को identify करा, I need to write its dimensional formula. तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे आप इसका? आपको याद करने की जरूरत नहीं है. आप इस रिलेशन पे जाइए. फोर्स इज कैपिटल G, इट इज m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. बच्चे, यहां से कैपिटल G किसके बराबर आया?
It is force multiplied by distance square divided by m1 m2. अब यहां से मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव करूंगा. What is the dimensional formula for capital G is dimensional formula for force, and force dimensional formula is mlt minus 2. Next one is distance square, मतलब L square divided by mass m1 represented by m, mass m2 represented by m. अब बच्चे आप इसको सॉल्व करिए. आप इसको सॉल्व करेंगे. What the dimensional formula I am getting? This m and m cancelled out. This m is going up. It is m raised to power minus 1. See carefully. L into L square, that is equal to L cube, and t raised to power minus 2. This is the dimensional formula for capital G. तो मेरा यहाँ पे स्टेप नंबर 1 है टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपिटल G. व्हाट दैट डायमेंशनल फॉर्मूला इज m रेज टू पावर माइनस 1 L क्यूब t रेज टू पावर माइनस 2. और बच्चे मैंने आपको इसके बाद बताया था कि यहां से आप a b c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. मींस this I need to compare with the general formula m raised to power a, L raised to power b and t raised to power c. अब जब आप कंपेयर करेंगे, m is compared with m, L is compared with L and t is compared with t. तो what I am getting बच्चे, यहां आपको ये मिलेगा वैल्यू फॉर a is equal to a in this case is equal to -1. Fine. Value for b is equal to c, L raised to power b, L raised to power 3. So b is equal to 3, and finally t raised to power c, that is equal to t raised to power minus 2. So c is equal to -2. This is first and very important step. How we will find the value for a b c, right? आप सबसे पहले डायमेंशनल क्वांटिटी या जो क्वांटिटी आपको दे रखी है यहाँ पे, उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे. सो फॉर कैपिटल जी दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला. और बच्चे ये डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा यहाँ पे? आई हैव रिटन दिस डायमेंशनल फॉर्मूला ओनली टू गेट द वैल्यू फॉर ए बी एंड सी, एंड दिस इज द वे बाय व्हिच वी गेट द वैल्यू फॉर ए बी एंड सी. फाइन. कम टू द स्टेप नंबर 2. अब बच्चे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि आपका स्टेप नंबर 2 क्या होगा. आपका स्टेप नंबर 2 ये होगा, आप किस सिस्टम ऑफ यूनिट से किस सिस्टम ऑफ यूनिट में जा रहे हो. सी दिस इज माय सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट. और बच्चे आप कन्वर्ट करेंगे अपनी वैल्यू को सीजीएस से एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में. तो एक साइड आप लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट. अब यहां पे जो सिस्टम ऑफ यूनिट आपको दे रखा है दैट इज सीजीएस, एंड आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट. चेक योर क्वेश्चन वन मोर टाइम. आपको बोला गया कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ जी. मुझे कैसे पता चला कि ये सीजीएस है? इट इज डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. डाइन इज a CGS unit for force, centimeter CGS unit for length, and gram is the CGS unit for mass. और convert करना है बच्चे मेरे को SI में, right? तो now I know what happened in CGS system. First quantity is mass. Mass is measured as 1 gram. Length L1 is measured as 1 centimeter, and time T1 is measured as 1 second. You people know better. और बच्चे जो n1 की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, this is the value for n1, 6.67 into 10 raised to power minus 8, and this value is given in units, dyne centimeter square per gram square, right? dyne centimeter square per gram square. Come to the SI. SI में same value for mass M2. It is 1 kilogram. That is equal to 10 raised to power 3 gram. Length L2 that is equal to 1 meter. और बच्चे 1 meter किसके बराबर होता है? 10 raised to power 2 centimeter. The next one is time T2 that is 1 second. And I have to find the value of
G in the SI system of unit, right? This description is given to you. Now what is your step number 3? मैंने आपको सारे के सारे स्टेप ऑलरेडी बताए हुए हैं, तो जैसे ही आप स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे, you need to apply the formula n2 that is equal to n1, then it is within bracket m1 divided by m2 raised to power a. Next one is L1 upon L2 raised to power b, and third one is T1 upon T2 raised to power c. Okay, now check carefully. In this formula each and every value is given to you. अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें, n1 this is my n1, m1 given, m2 given, L1 given, L2 given, and similarly T1 and T2, and all these powers they are given to you. Now simply substitute all these values in the formula and then see what value you are getting for capital G in the SI system of unit, right? So I am going to substitute these values. So my n2 that is equal to, in place of n1 this is the value, it is 6.67 into 10 raised to power minus 8. Come to the next one, m1, which it is 1 gram divided by m2, see 10 raised to power 3 gram, and raised to power a, ये देखो a की पावर कितनी दे रखी है आपको, -1. Come to the next one, L1 is given to you 1 centimeter divided by L2 is 10 raised to power 2 centimeter, and what is the value for B? It is 3. Okay, and the last one is T1 1 second divided by 1 second raised to power C का मतलब हुआ -2. So this gram and gram cancelled out, centimeter second, और बच्चे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू इन द SI सिस्टम ऑफ यूनिट इज, सी वेरी केयरफुली, 6.67 into 10 raised to power minus 8. अब आप ध्यान से देखना यहाँ पे, it is 1 raised to power minus 1, 10 raised to power 3 minus 1, तो ये आएगा multiplied by 1 divided by 10 raised to power minus 3. I hope this is clear. Then again it is multiplied by 1 divided by 10 raised to power 2 raised to power 3. So it is 1 divided by 10 raised to power 6. और मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था 1 raised to power minus 2, either 1 raised to power minus 2 or 1 raised to power 2, it always comes out to be 1 only. Okay, अब इसको सॉल्व करते हैं और ये देखते हैं कि आपकी ये वैल्यू कितनी आएगी, व्हाट दिस वैल्यू इज इक्वल टू, राइट? तो इन द नेक्स्ट स्टेप सी द सॉल्यूशन, n2 इज इक्वल टू 6.67 into 10 raised to power minus 8 multiplied by, while this is going up, 10 raised to power plus 3, and when this is going up 10 raised to power minus 6. You know how to solve these powers. 6.67 into 10 raised to power, बच्चे बेस देखो, बेस is same, power should be added, so it is -8 -6 plus 3. So ultimately my answer n2 is 6.67 into 10 raised to power. Now see, it is -8 -6 -14 and plus 3 -11. So it is 10 raised to power minus 11. अब डाइन था CGS में, तो SI में हो जाएगा न्यूटन, सेंटीमीटर के प्लेस पे आएगा मीटर स्क्वायर, और ग्राम के प्लेस पे आ जाएगा पर किलोग्राम स्क्वायर. It means this is the value for universal gravitational constant in the SI system of unit, right? So what conversion I have made? 6.67 into 10 raised to power minus 8 dyne centimeter square per gram square, which is given to you in CGS. This is the value given to you in CGS, and we convert this value into SI. 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kilogram square. A very simple and effective method by which we can convert the given CGS value into the SI value. So this value is SI value for the capital G, and I hope you people understood this numerical also. Okay,
Still, if you are facing any sort of problem in this numerical also, the comment box is open for you people. You simply have a comment and I will let you know the answer for the next thing, right? So this is conversion of one system of unit into another, and this we did the type third numerical. तो बच्चे यहाँ पे भी numerical के अलग अलग types हैं. Fine. आपको अगर base foundation, if you have the strong foundation, strong base, you can do this numerical with the easiness. आप बड़े आसानी से इस numerical को बच्चे solve कर सकते हैं. Okay. Now I am going to change the level. See, अब बच्चे अभी तक तो हम लोगों ने बात करी कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर. तो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज ये बताई कि एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट कर दो या सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट कर दो, राइट? तो दीज टू टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल वी पीपल ऑलरेडी कंप्लीटेड. लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि इस न्यूमेरिकल को थोड़ा चेंज करा जाए. फॉर एग्जाम्पल देखो, जो न्यूमेरिकल अब मैं यहाँ लिखूंगा, where conversion we are not doing either from CGS to SI or you see SI to CGS. तो इस न्यूमेरिकल को थोड़ा ध्यान से देखना कि जब आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. तो बच्चे इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? फाइन. हाउ दिस न्यूमेरिकल कैन बी सॉल्व? अगेन इट इज वेरी सिंपल. फाइन. नाउ व्हाट इज गिवन टू यू इन दिस न्यूमेरिकल? लिसन केयरफुली. कन्वर्ट 100 जॉल पर मिनट. अब ध्यान से सुनना, ये स्टेटमेंट क्या बन गई. कन्वर्ट 100 जॉल पर मिनट ऑन अ सिस्टम. आपको इसको कन्वर्ट करना है ऑन अ सिस्टम वेयर मास इज मेजर्ड एज 100 ग्राम, लेंथ इज measured as 100 centimeter and time is measured as 1 minute as base units. एज बेस यूनिट. अब आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे, यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है. आपको बोला कन्वर्ट 100 जॉल पर मिनट. क्या है ये 100 जॉल पर मिनट? आई एम कमिंग बैक टू यू. आपको बोला कन्वर्ट 100 जॉल पर मिनट ऑन अ सिस्टम, मतलब इस वैल्यू को कन्वर्ट करो इन एन अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट जहां पे मास आपको दे रखा है 100 ग्राम, राइट? आपको लेंथ दे रखी है 100 सेंटीमीटर एंड टाइम इज गिवन टू यू एज व्हाट? टाइम इज गिवन टू यू एज 1 मिनट. ओके. तो बच्चे सबसे पहले तो मेरे को ये क्वांटिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. 100 जॉल पर मिनट इज व्हाट? सो स्टेप बाय स्टेप आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. कम टू द स्टेप नंबर 1. ठीक है. अब स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे? लीव द क्वांटिटी फॉर द टाइम बीइंग. इस क्वांटिटी को भूल जाओ, आपको कुछ दे रखा है. सिर्फ आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? यू पीपल हैव गिवन 100 जॉल डिवाइडेड बाय 100 जॉल डिवाइडेड बाय क्या दे रखा है तुम्हें? 100 जॉल पर मिनट. पर मिनट मतलब 100 जॉल डिवाइडेड बाय 1 मिनट. ओके. अब इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे आगे. इट इज 100 जॉल divided by 1 minute is 60 second. So this is going to cancel out. इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर आई? This value is 5 divided by 3. Because अगर मैं इसको क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 divided by 3 और यूनिट आगे जॉल पर सेकेंड. I am again going to solve it with one more step. Fine. It is 1, 3 1 the 3, 2 20. It is 6 and 6 जॉल पर सेकेंड. तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास. अब ये किसकी वैल्यू है जो आपको दे रखी है? सी जॉल इज द एसआई यूनिट. आपको जो वैल्यू दे रखी है जॉल एसआई यूनिट है वर्क डन का, एंड दिस सेकेंड इज द यूनिट फॉर द टाइम. वर्क डन पर यूनिट टाइम पता है आप लोगों को किसके बराबर होता है? दैट इज बेसिकली पावर. आई होप यू दिस इज क्लियर टू यू. तो मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे? The physical quantity which is given to me, that physical quantity is power. और बच्चे पावर की ये वाली वैल्यू दे रखी है आपको, and this value of the power is given to you in SI. Why in SI? In SI, work done is measured as joule and time is measured as second. Fine.
तो दिस वैल्यू इज गिवन टू यू इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो मेरे को करना क्या है, अब आपको पता है आपको चाहिए पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है ml2 t-2 एंड इज डिवाइडेड बाय टाइम t। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला यहां आएगा इट इज ml2, दिस t इज गोइंग अप, t रेज टू पावर -3। और मैंने आपको बताया था कि यहां से आपको मिलेगा क्या, यहां से आपको मिलेगा a। व्हाट इज a? m रेज टू पावर दैट इज a, इट इज 1। देखो m के ऊपर पावर जो है वो 1 है। l रेज टू पावर b that will give you b, it is 2, and t raised to power that is giving you the value for c। तो a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to -3। this is my step number 1। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है 100 जूल पर मिनट। कोई बात नहीं, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, मे बी 100 जूल और समथिंग एल्स। आपने बच्चे सिर्फ इस वैल्यू को सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो वैल्यू आपके पास आएगी उस वैल्यू के लिए आपने एक फिजिकल क्वांटिटी यू नीड टू डिफाइन। और जैसे ही आप इस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। एंड विद द डायमेंशनल फॉर्मूला you people are able to find the value for a, b and c। I hope this is clear to everyone। is it okay? right, come to the step number 2। अब जहां पे हम लोग कन्वर्जन करते हैं, राइट, कन्वर्जन किसकी कर रहा हूं मैं, कन्वर्जन आई एम डूइंग फ्रॉम एसआई। तो बच्चे एक साइड पे तो आप एसआई लिख दो, लेकिन दूसरी साइड कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट आपको दे रखा है, आई डोंट नो कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है। मास वहां मेजर कर रहे 100 ग्राम में, लेंथ वहां मेजर कर रहे 100 सेंटीमीटर में, और टाइम मेजर कर रहे 1 मिनट। नाइदर सीजीएस नॉर एसआई। तो इस सिचुएशन में आप यहां पे लिखेंगे न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। फाइन, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट हो सकता है ये। चलो एसआई में आपको पता है m1 is measured as 1 किलोग्राम, that is 10 raised to power 3 ग्राम। length L1 is, it is 1 meter, that is equal to 10 raised to power 2 centimeter, and time t1 is 1 second। और बच्चे जो वैल्यू n1 की आपको दे रखी है ना एसआई में, that is 1.66, it is joule per second। और जॉल पर सेकंड को हम वॉट बोलते हैं, राइट। दिस इज द एसआई यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर। अब आप न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में आ जाओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2? जो वैल्यू आपको दे रखी है m2 की, दैट इज 100 ग्राम। इसका मतलब ये वैल्यू हो गई 10 raised to power 2 ग्राम। मुझे कंसिडर कुछ नहीं करना, दे रखी है ये वैल्यू। वैल्यू फॉर लेंथ L2 दैट इज 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वैल्यू हो गई 10 raised to power 2 सेंटीमीटर। और बच्चे जो टाइम आपको दे रखा है t2 दैट इज 1 मिनट। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपको पता है, 60 सेकंड। तो मेरे को फाइंड आउट करनी है वैल्यू फॉर पावर इन द सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। मुझे लगता है यहां तक आपको ये क्लियर है, नो प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। फाइन, हम 10th से जैसे ही 11th में आते हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स की। तो बच्चे न्यूमेरिकल के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। एंड इन फिजिक्स न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों का सर्वाइवल है नहीं न्यूमेरिकल के बिना। ओके, तो दिस इज द वे। सबसे पहले जो आपको दे रखा है वो लिख लो, उसको सॉल्व करो। एसआई यूनिट किसके बनेगी, पावर के। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द पावर, यू नो हाउ टू राइट। उसके बाद ए बी सी कैलकुलेट कर लो एंड देन कन्वर्ट द गिवन वैल्यू फ्रॉम एसआई टू न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। अब बच्चे इसके बाद आपको पता है कि स्टेप नंबर 3 क्या होना चाहिए। स्टेप नंबर 3 इज व्हाट, जो आपका स्टेप नंबर 3 होगा उसमें मैं फॉर्मूला लिखूंगा। कौन सा फॉर्मूला, कन्वर्जन। n2 इक्वल टू n1 विद इन ब्रैकेट इट इज m1 डिवाइडेड बाय m2 रेज टू पावर a। फाइन, देन नेक्स्ट वन इज l1 अपॉन l2 रेज टू पावर b, and third one is t1 upon t2 raised to power c।
Simply substitute the values one by one. n2 equal to n1 की वैल्यू क्या है 1.66 multiplied by come to the m1. m1 is 10 raised to power 3 gram divided by m2. It is 10 raised to power 2 gram raised to power a. बच्चे a के प्लेस पे आ गया 1. Then next one is L1. It is 10 raised to power 2 सेंटीमीटर यहां से L1 SI में. और जो L2 आपको दे रखा है 10 raised to power 2 सेंटीमीटर raised to power B. B is 2. और बच्चे जब मैं टाइम की बात करूंगा यहां टाइम कितना है it is 1 second divided by 60 second raised to power -3. Okay, this is how we substitute the values. और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब आपने सिर्फ यहाँ पे इसको सॉल्व करना है मैथमेटिकली. एंड आई होप यू पीपल नो हाउ वी कैन सॉल्व इट मैथमेटिकली. तो सी वन मोर स्टेप आई एम डूइंग फॉर यू. n2 इक्वल टू 1.66 गिवन वैल्यू. अब बच्चे ये ग्राम एंड ग्राम कैंसल्ड आउट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेकंड से सेकंड भी कट गया. ठीक है, अब आप ध्यान से देखना 10 raised to power 3 10 raised to power 2. तो जब ये 2 ऊपर जाएगा -2 मेरे पास यहाँ आएगा 10 raised to power 1. 3 minus 2 is 1. यहाँ देखो 10 raised to power 2 and 2 cancel out. We left with 1 square. और यहाँ पे आपके पास आएगा it is multiplied by 1 divided by 60 and raised to power -3. ओके, इस वाली टर्म को मैं सेपरेटली यहां पे सॉल्व करने लगा हूं. सी इट इज 1 डिवाइडेड बाय 60 रेज टू पावर -3. तो इसको कैसे लिखेंगे 1 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 60 रेज टू पावर -3. सेपरेट कर दी मैंने पावर्स. अब 1 रेज टू पावर -3 इज 1 ओनली एंड इट इज 60 रेज टू पावर -3. ऊपर ले जाओ इसको. तो बच्चे ये आ गया 60 raised to power 3. It means it is 60 multiplied by 60 multiplied by 60. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 6 multiplied by 6 multiplied by 6 and 10 multiplied by 10 multiplied by 10. देखो ये भी 60 बना, ये भी 60 और ये भी 60. फाइन. अब मुझे पता है 6 into 6 36. 36 into 6 6 6 the 36 3 and it is 216 into 10 raised to power 1 2 and 3. So write down this value here. n2 comes out to be 1.66 into 10 raised to power यहां से 1, no need to write, multiplied by 1 it's 1. और बच्चे यहां से क्या है मेरे पास it is 216 into 10 raised to power 3. अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे n2 comes out to be c. इन दोनों को बेसिस सेम, पावर शुड बी एडेड और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो माय वैल्यू इज 1.66 into 216 10 raised to power 4 and this value comes out to be in new system of units. ये वैल्यू आपकी आएगी इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में. तो ये एक सिंपल सा वे है जिससे हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे न्यूमेरिकल आपको मिलने की टेंडेंसी मैक्सिमम होती है. आई होप यू पीपल कैन मल्टीप्लाई दिस एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर. ओके, तो चैट बॉक्स में मेरे को इसके आंसर के बारे में जरूर बताना. तो दिस इज माय कन्वर्जन नंबर 1. ये बच्चे मेरे पास कन्वर्जन नंबर 1 है. कन्वर्जन नंबर 1 में मैंने क्या करा, सिंपली टू कन्वर्ट अ वैल्यू ऑफ given system of unit into another system of unit, and this is very important. Either I can convert from SI to CGS or from CGS to SI. और ये था मेरे पास टाइप नंबर 3 जहां पे आपको एक वैल्यू दे रखी होगी किसी गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट में. और अगर ये वैल्यू आपको किसी गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट में दे रखी है तो आप लोग चेक करेंगे कि इस वैल्यू को हम गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. आई एम क्लियर विद माय वर्ड्स. फाइन, थैंक यू वेरी मच. ओके, तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग नाउ आफ्टर टाइप 1 to टाइप 2. टुडे आई विल गिव यू सिंपल आइडिया
हाउ वी विल सॉल्व दिस टाइप 2, राइट। तो टाइप 2 में अब मेरे पास क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशंस, बट नाउ आई एम डीलिंग विद टाइप 2। चलिए बच्चे, टाइप 2 में क्या करना पड़ता है मेरे को, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन या इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस। अब आप सोचेंगे ये करेक्टनेस क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन। कोई भी रिलेशन आपको दे रखा होगा, आपने क्या चेक करना है, यू पीपल हैव टू चेक कि वेदर दिस रिलेशन इज करेक्ट और दिस रिलेशन इज रॉन्ग। तीन तरह के एप्लीकेशन मैंने आपको बताए विच वी हैव टू बी टेक केयर व्हाइल वी आर डीलिंग विद द डायमेंशंस। जब भी बच्चे हम डायमेंशन से डील करेंगे, मेरे पास 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी या एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्या थी वो एप्लीकेशन, हाउ टू कन्वर्ट वन गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। अब ये है टाइप 2, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन रिलेशन और गिवन फॉर्मूला और गिवन इक्वेशन। ठीक, तो यहां पे मैं सिंपल आपको एग्जांपल से ही इलेबोरेट करूंगा। चलिए मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन क्या है आपके पास, राइट। I hope all of you know. Yes, some voices are coming. So this is V is always equal to U plus AT. This is my first equation of motion. Final velocity V is equal to initial velocity U plus acceleration multiplied by time. ये है मेरे पास first equation of motion. अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे with the help of dimensional analysis prove that this equation is a correct equation, तो आप क्या करेंगे, what you have to do, see there are again 3 steps। सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दे रखी है, write on that equation। now number 2, write the dimensional formula on both hand side, fine। so dimensional formula लिखने के लिए सबसे पहले मेरे को physical quantity किसमें लिखनी पड़ेगी, square brackets, dimensional formula for B on the left hand side, dimensional formula for U plus dimensional formula for acceleration multiplied by dimensional formula for time। अब ये जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज मैंने आपको कराए थे, इनकी बहुत नेसेसिटी है यहाँ पे बच्चे, इसलिए बोला था इनको याद मत करो, क्रैम मत करो, इनके जो बेसिक रिलेशंस हैं उन रिलेशन से इनको फाइंड आउट करो। तो नाउ सी दिस इज फाइनल वेलोसिटी। What is the dimensional formula for final velocity is, पता है आप लोगों को, LT minus 1। अब बच्चे वेलोसिटी फाइनल हो या इनिशियल हो, डायमेंशनल फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता, वेलोसिटी तो वेलोसिटी ही रहेगी। सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर U is LT minus 1। अगेन फॉर एक्सेलरेशन, द थर्ड टर्म जो मेरी रिलेशन में अपीयर हो रही वो है एक्सेलरेशन। Dimensional formula for acceleration, this is equal to LT minus 2। और ये लास्ट में है टाइम, dimensional formula for time that is equal to capital T। तो आपने करना क्या है, 3 स्टेप बोले मैंने आपको। स्टेप नंबर 1, write the equation where we can substitute the dimensional formula in this format। अब आप स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड। क्वेश्चन आप पूछेंगे मेरे से, क्यों डायमेंशनल फॉर्मूला, वी आर प्रूविंग दैट दिस इक्वेशन इज करेक्ट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और डायमेंशनल एनालिसिस में जब आपको प्रूव करना है तो डायमेंशनल फॉर्मूला से ही प्रूव कर सकते हैं। फाइन, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी B, LT minus 1। फॉर इनिशियल वेलोसिटी U, it is LT minus 1। Again for acceleration it is LT minus 2 and for the time it is capital T। तो जैसे जैसे आपको टर्म्स दे रखी हैं डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखिए। फॉर फाइनल वेलोसिटी देखो ये डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। फॉर इनिशियल वेलोसिटी दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला आई रिटन हियर। फॉर एक्सेलरेशन दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला आई हैव रिटन इन प्लेस ऑफ एक्सेलरेशन, ये प्लस साइन एज इट इज आएगा यहाँ पे, and in place of T capital T।
अब जरा सॉल्व करके देखिए इसको। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एक ही टर्म है, वैल्यू आ गई LT-1। ऑन द अदर हैंड साइड इट इज LT-1, सिंगल टर्म आई एम हैविंग। लेकिन यहाँ पे T-2 T+1, बेस इज सेम, पावर शुड बी एडेड। सो T-2 + 1 क्या बनाइए, LT-1। अब आप ध्यान से देखो जरा, कुछ हुआ यहाँ पे, जितनी भी टर्म्स आपकी अपीयर हो रही हैं, टर्म नंबर 1 वेलोसिटी, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, LT-1। टर्म नंबर 2 इज u, इनिशियल वेलोसिटी, LT-1। and term number 3 is a multiplied by t, LT-1। तो इसका मतलब the dimensions of each term is same। जितनी भी टर्म्स आपने यहाँ पे सॉल्व करी, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लास्ट में सेम आया। इट मींस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बच्चे ये वाली इक्वेशन जो है, दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्यों हुई ये करेक्ट, क्योंकि LT-1 on the left hand side for term number 1 is equal to LT-1 on the right hand side for the first term, and again LT-1 on the right hand side for the second term। अगर आपके ये डायमेंशनल फॉर्मूला एवरी टर्म्स के लिए सेम आता है, so this equation is dimensionally correct, right? So I hope today you get the idea about this। So these numericals now I will solve for you people in my next lecture। Fine, there are some you see tough numerical also, and I will give you an idea how to solve these numericals। But still आपको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो टाइप 1 मैंने करी और टाइप 2 का जो आइडिया मैंने आपको दिया, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, काइंडली हैव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। बट प्लीज go carefully, have careful revision of these numericals। बच्चे ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब आप 11th या 12th की बात करते हैं। फाइन, अ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट कैसे प्रूव करना, आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो दिस सिनेरियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। काइंडली टेक केयर ऑफ दीज न्यूमेरिकल्स, ओके, एंड ट्राई टू हैव अ रिटन यू सी revision with you people, okay? Thank you very much। We will meet now in the next lecture।